एक बात समझ के रखो, जो डायग्राम जितना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा उसका आंसर उतना इजी होता है। The diagram looks very complicated, looks like two rockets placed side by side, but it is essentially nothing. I'll just give you the question now. Identical surcharges are placed at ground surface at sites x and y. The left side is x, right side is site y, with soil conditions as shown in the figure and water table at ground surface. The silty clay layers at sites x and y are identical. The thin sand layer at y is continuous and free draining with a very large discharge capacity. If primary consolidation at x is estimated to be completed in 36 months, what would be the corresponding time for completion of primary consolidation at y? Four options are given. Option A, 2.25 months. Option B, 4.5 months. Option C, 9 months. And D, 36 months. এটা কোন দিয়েছি তোমাকে? সয়েল প্রোফাইলটা at site X and at site Y. So ଗୋଟେ cross section କାଟି କେବଳ ଦେଖେଇଛି, କିନ୍ତୁ this is the profile how the soil layers are arranged. Are you able to understand? The same clay. Sand. 36 months is time of consolidation for site X. He is asking for site Y. Why? Same time we did a settlement. Okay, we'll discuss. But answer is not correct. But we'll discuss your point of view. Very good. Kintu I am highly impressed. You have started thinking the way it needs to be thought. Just rethink. What is the difference between these two layers? Approach is perfectly alright. Just a little bit of change is required. ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଲି so that we can have a deeper understanding of this thing. Very large distance capacity. Very large discharge capacity means its permeability is very high. So that will not make any difference. Yes. Yes. That is the thing. You have also said the same thing, but you made a little small mistake only. Now just look at it. This whole thing. Suppose we are talking about its consolidation is complete after 36 months. Actually, for 100% consolidation, we have already discussed. Theoretically, infinite time will be required. After 36 months, maybe 99.99% or whatever amount of consolidation is completed. So we say that after 36 months, consolidation is complete. Jitna bhi percentage ho done. But look at the soil layer that is consolidating here. What is the soil layer? A 10-meter thick clay layer with one drainage face. So it is a case of single drainage. Now look at this soil layer here. The upper layer of the soil is having a double drainage case because here drainage can take place, here also drainage can take place. And for the bottom layer, you have a single drainage case. Just think about the thing. When will you say that consolidation is over? When will you say that? When the entire layer has consolidated, right?
but here the same layer is divided into two layers. The upper layer having two drainage faces will consolidate much faster than the lower layer, क्योंकि इसका दो ड्रेनेज फेस है, ये फास्टर कंसोलिडेट करेगा. कौन सा लेयर? ये ऊपर वाला लेयर. पर ये बॉटम लेयर विल नॉट बी कंसोलिडेटिंग एज फास्ट एज द टॉप लेयर. सो ऊपर का लेयर का अगर भी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाता है, यू विल नॉट से कि उसका कंसोलिडेशन पूरा हो गया जब तक इस बॉटम लेयर का कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं हो गया है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब से जैसे भी तुमको लेयरिंग करके देगा, तुम डिसाइड कर लोगे कि कौन से लेयर में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा फॉर द कंसोलिडेशन टू बी ओवर, और उसी लेयर को लेके तुम डिटरमाइन करोगे इस टोटल का कंसोलिडेशन के लिए टाइम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों समझ रहे हो? क्योंकि ऊपर वाला कंसोलिडेट हो जाएगा. मान लो जो इसका जो मान लो पूरा कंसोलिडेशन होना था, इस पोर्शन का पूरा कंसोलिडेशन हो गया, ये और कंप्रेस नहीं होगा. पर जब इसका कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया होगा, इसका कंसोलिडेशन नहीं कंप्लीट हुआ होगा, दिस विल स्टिल बी कंसोलिडेटिंग, क्योंकि ये सिंगल ड्रेनेज का केस है. समझ में आ रहा है? तो कौन सा लेयर का कंसोलिडेशन डिटरमाइन करेगा कि कंसोलिडेशन अभी कंप्लीट हो गया, ये हो गया बट दिस इज कंसोलिडेटिंग. मतलब इसका जब कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा तब तुम कहोगे कि पूरा लेयर का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया. राइट? तो हम लोग कैसे निकालेंगे? टाइम आता है, मतलब मैं बोला हूं टीवी का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा इफ देयर इज टाइम. सो हम लोग बोल रहे हैं कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है. जो भी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो, 100% तो होगा नहीं थियोरेटिकली, मान लो 99.99, वी आर नॉट बॉदर्ड. बट फॉर दैट गिवन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन योर टीवी वैल्यू इज फिक्स्ड, इट्स यूनिक. सो फॉर दिस and for this, for consolidation to be complete, TB value will be fixed because degree of consolidation will be fixed. So we will write TB is equals to CB into T by H square. ठीक है, दोनों क्ले सॉइल सेम है तो CB तो सेम रहेगा, TB भी सेम है. डिफरेंस किस में होगा? H में होगा. और टाइम में डिफरेंस होगा कि नहीं, हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जैसे दो लेयर आ जाते हैं तो हमने बोला था कि उसका कंपैरिजन ले लेना. अगर कंपैरिजन भी नहीं लेना है तो इसमें से टी को इन टर्म्स ऑफ टीवी सीबी एच स्क्वायर निकाल सकते हो एंड यू कैन गेट द सेम थिंग देयर. सो नाउ लेट अस से दिस इज केस 1, साइट x. सो लेट अस राइट tx, टाइम फॉर कंसोलिडेशन इज tx. इसका टाइम फॉर कंसोलिडेशन लेट अस राइट एज ty. tx is given to be 36 months. ty is asked. सो नाउ tb दोनों का सेम है. So first CB I am writing CB TX. तो H के जगह कितना डलेगा यहाँ पे? 10 मीटर, because the whole thickness of the clay layer you will consider, क्योंकि ये single drainage case है. So in place of H you will have 10. Right? Done. Again TB will be same for the second case also. When degree of consolidation is same, consolidation over हो गया, TB same है, CB सेम है, CB रखे, उसका टाइम लेट इट बी TY. सिंपल. नाउ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ड्रेनेज लेयर? ये लेंथ जाएगा, बिकॉज दैट इज द सिंगल ड्रेनेज केस एंड दैट इज द क्रिटिकल पार्ट दैट विल डिटरमाइन कि कितना टाइम टोटल में लगेगा. एक्चुअल फील्ड में होगा क्या? इसका कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा ऊपर लेयर का, बट दिस लेयर विल स्टिल बी कंसोलिडेटिंग. तो जब दोनों का कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा तब बोलोगे कि कंसोलिडेशन पूरा हो गया. पर एक चीज है, तुम बोलोगे कि फिर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे बिगिनिंग से, ये इसका कंसोलिडेशन कब शुरू हुआ, इसका कंसोलिडेशन कब शुरू हुआ, ये भी देखना पड़ेगा. दोनों लेयर का कंसोलिडेशन एक साथ में शुरू होगा. ऑलमोस्ट एट t equals to 0 बोथ लेयर्स विल स्टार्ट कंसोलिडेटिंग, बट आफ्टर सम टाइम ऊपर लेयर का कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा क्योंकि ये डबल ड्रेनेज है, बट इट विल स्टिल बी कंसोलिडेटिंग. तो मतलब हम इसको दो क्ले लेयर करके ट्रीट कर सकते हैं. ऊपर वाले का हमको कोई परवाह नहीं है, नीचे वाले का हम लेंगे क्योंकि दैट इज द क्रिटिकल पार्ट. वही डिटरमिन करेगा कि कितना टाइम लगेगा. और जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेम है, आप लेयर का थिकनेस जो भी चेंज करो, टीवी तो नहीं बदलने वाला है क्योंकि दैट डिपेंड्स ओनली ऑन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. सो टीवी सेम रहेगा, सीबी भी सेम रहेगा. अगर बीच में से काट दिए तो इससे सॉइल तो वही है ना, तो टीवी वही रिसीवर वही रहेगा, ओनली टाइम ऑफ कंसोलिडेशन विल बी डिफरेंट. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एच हियर? इट इज अ सिंगल ड्रेनेज केस, राइट? So it will be 5 square. Done. Now you equate these two things. Are you getting my point? क्योंकि 5 layer हुआ ही, because this is a single drainage case. अगर ऊपर में लेते तो कितना लेते? किसी केस में मान लो ऊपर का ले रहे हो तो क्या लोगे? 2.5 मीटर.
बिकॉज दैट इज अ डबल ड्रेनेज केस. तुम देख भी सकते हो ऊपर का कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है. एज एन एक्सपेरिमेंट यू कैन चेक इट आउट. कितना टाइम में ऊपर का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा और कितना टाइम नीचे वाले का लगेगा. नीचे वाले का ज्यादा टाइम लग रहा है तो हम बोलेंगे कि उतना ही टाइम लगेगा. राइट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? So now, since TVs are same, we can equate these two expressions. So we will get CV into TX divided by 10 square equals to CV into TY divided by 5 square. ठीक है? तो CV will cancel out. That implies TX is also given to us 36 months. So it will be 36 divided by 10 square is equals to Ty divided by 5 square, which implies you will find Ty. This implies you will find Ty. I will not simplify it any further. How? 9 months. It is coming out as 9 months. So see, when it is taking 36 months for this layer to consolidate, this layer is taking 9 months. This layer is taking 9 months. Now calculate the time of consolidation for this layer. जब कंप्लीट हो जाएगा निकालो, हम देखेंगे उसका कितना टाइम लगता है. देखो तो निकालो. वो डबल ड्रेनेज केस है. So same thing will be used. Just in place of 5 you will have 2.5. 2.25. What is the answer? 2.25 months. देखो मतलब जब कंसोलिडेशन शुरू होगा विद इन 2.25 मंथ्स इसका कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया. इस लेयर का जितना सेटलमेंट होना था वो हो गया. नाउ दिस लेयर इज कंसोलिडेटिंग. इसको लग रहा है 9 मंथ्स. मतलब 2.25 मंथ्स में इसका हो गया और बाकी जो है वो चलता रहेगा इसका अप टू 9 मंथ्स लोअर लेयर का. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये लेयर तुमको कहीं पे भी डाल दे, एनीवेयर. व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? यू विल सी व्हिच पार्ट इज क्रिटिकल, किसका ज्यादा टाइम लगेगा, और उसी लेयर को तुम डिटरमाइनिंग फैक्टर की तरह लोगे. क्योंकि तब तक कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये दोनों लेयर में कंप्लीट नहीं हो जाता है. डन? What would be the corresponding time for completion of primary consolidation and why many total टोटल वाई में, वाई के साइड में प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो तब कैसे बोलोगे कि उसका टोटल कंप्लीट हो गया? जब ऊपर का लेयर का भी हो गया और नीचे का लेयर का भी हो गया तब बोलोगे कि साइट वाई में टोटल कंप्लीशन हो गया. ऊपर का लेयर का होने के लिए 2.25 मंथ्स में हो जाएगा, पर नीचे का लेयर विल स्टिल बी कंसोलिडेटिंग. जब ऊपर के लेयर का कंसोलिडेशन खत्म हो गया, कंसोलिडेशन खत्म हो गया मतलब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर पूरा डिसिपेट हो गया, और इसमें जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर रहेगा वो डिसिपेट नहीं हुआ होगा. पानी अभी तक पूरा निकला नहीं होगा इस लेयर में से. इट विल टेक 9 मंथ्स. तो ये हो गया एंड इट इज हैपनिंग, बट दोनों एक ही टाइम में स्टार्ट होंगे. माइंड यू, इसका कंसोलिडेशन एक टाइम में शुरू होगा. आफ्टर 2.25 मंथ्स दिस कंसोलिडेशन पार्ट विल बी ओवर एंड दिस विल टेक 9 मंथ्स टू कंप्लीट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो तुम क्या बोलोगे? आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ कंसोलिडेशन 9 मंथ के बाद ये साइट वाई का खत्म हुआ और इसका लगा 36 मंथ्स. आ गया समझ में? जहां पर भी ऐसे दो टाइप का चीज देगा जनरली देखोगे कि टीवी सेम हो गया होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेम है. तो दोनों का जो अननोन होगा उसको रहने दो, जो नोन है डाल दो, दोनों को इक्वेट कर दो. और टाइम आ रहा है मतलब टीवी का यूज होगा ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा ना. क्वेश्चन में टाइम दे रहा है मतलब डायरेक्टली थिंक हाउ यू नीड टू यूज टीवी. कैसे यूज होगा, उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर दिया गया है और कौन कौन सा एब्सेंट है. कितना सेटलमेंट पूछा है मतलब वहां पे टाइम का जरूरत है ही नहीं. वहां पे सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, और अगर तुम्हारा एमवी के टर्म्स में दिया हुआ है तो सिर्फ चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस लगेगा. गेटिंग माय पॉइंट? ऑप्शन कंफ्यूजिंग दे दीजिए. जी जानी नथिबो फास्ट भी देछि, फास्ट हबा टाइम टा देछि और टॉलरेट हबा देछि. yes, she noticed it. I had not noticed it. 2.25 months is also given. तो जो ऊपर का निकालेगा वो लगा उसी का जो ऊपर टर्म बाहर कर दिली, ऊपर का हो रहा है 2.25 मंथ्स तो हो गया. अरे भाई वो 2.25 मंथ्स में खत्म हो जाएगा, पर ये नहीं खत्म हुआ होगा तब तक, इसका ड्रेनिंग चल रहा होगा. वो 9 मंथ लगेगा उसको खत्म होने में, और ये तो 36 मंथ दिया है ये. सो दैट इज व्हाई दे हैव गिवन यू द ऑप्शंस. Oh, I had not noticed it. That's a nice thing. Okay, now
एबे जो कॉन्सेप्ट शिखिल ताको कीप इट विथ यू गोटे पूरा लेयर अच्छे एक पूरा लेयर है पूरा लेयर अगर 2-3 लेयर में बट गया या 2 लेयर में बटा तो जब तक ईच पोर्शन का कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है पूरा लेयर का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ ऐसा तुम नहीं कह सकते तो इसलिए हर पोर्शन का जो सब डिवाइडेड लेयर से हर लेयर का कंसोलिडेशन कंप्लीट होना जरूरी है उसमें से देख लोगे कौन सा क्रिटिकल लेयर है मतलब जिसमें से सबसे ज्यादा टाइम लगेगा दैट मीन्स उतना टाइम लगेगा पूरा कंसोलिडेशन खत्म होने के लिए नेचुरल सी बात है हैं? तो कैसे एक एग्जांपल देता हूँ हॉस्टल में मान लो सब लोग खाने को बैठे हो और एक रूल है सुनो इधर सब लोग खाने को बैठे हो एक रूल है जब तक मतलब सबका खाना खत्म नहीं हो जाता है कोई टेबल नहीं छोड़ेगा इट इज ए टेबल एटिकेट इन सम प्लेसेस तो जो स्लोएस्ट ईटिंग पर्सन है उसी का टाइम ही डिसाइड करेगा कितना टाइम ऑफ डिनर है बाकी तुम्हारा खत्म हो गया तुम वेट करोगे खाने के बाद वैसा ही होता है इसका खत्म हो गया इट इज वेटिंग द अदर वन इज ईटिंग राइट सो यू लुक एट द स्लोएस्ट ईटर ओके फाइन